1 to 2.5. In that we have seen that the two methods, some of the small concept and basic concept of the quadratic equation, roots of the quadratic equation, nature of the quadratic equation. Now the last part of this chapter is application of the quadratic equation, that where you can apply this and to solve the different types of problems. Okay, so before going to this, I know that for most of the students it's very difficult to solve the word problem because they are unable to make the equation. But if you will understand a small thing in that, so easily you can make the equation, and once you are able to make the equation, it is easy to solve because already you have solved such type of questions in the previous practices. Okay, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, आपको कुछ मैथमेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, उनको कन्वर्ट कैसे करना है, दैट यू मस्ट नो. लाइक सम दिया हुआ है, SUM sum. Sum आपको दिया हुआ है means you have to add, you have to use the sign of plus. Okay, then difference is given to you. आपको difference दिया हुआ है, तो आपको याद रखना difference दिया है, it means you have to use the sign of subtraction, that is minus sign. Product दिया हुआ है, product means you have to use the sign of multiplication. Reciprocal दिया है, reciprocal दिया, it means you have to use 1 upon. Okay, any number you have to represent in 1 upon form. So reciprocal. Then consecutive number. Consecutive numbers का मतलब क्या होता है? Consecutive numbers means number after one another. Means continuous number. जैसे 1 है, what will be the consecutive of 1? That will be 2. 2 का consecutive 3 रहेगा. Okay. Multiple. Multiple का मतलब क्या है? Which is divisible completely by. अब यहाँ पर दिया for example multiple of 3. इसका मतलब the number which is completely divisible by 3. Okay, so multiple. So this small things you must keep it in your mind. Like आपको कुछ एज टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं. एज टाइप में आपको एगो, एगो मींस दिया हुआ रहता है, मतलब पहले, मींस यू हैव टू यूज द साइन ऑफ माइनस. देन आफ्टर और फ्रॉम, नाउ, हेंस, आपको यहाँ पर प्लस साइन का यूज करना है. तो आप अगर इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो यू कैन इजीली मेक द इक्वेशन. और इक्वेशन बन जाती है. अगर मैं आपको इक्वेशन देती हूँ इन अ नॉर्मल सिचुएशन, so you will very easily you will solve the question. So just try to make the correct equation. Okay, correct equation आपको बताना है. So now we are going to study practice set 2.6 first question. So take out that and just read it very properly. Okay, so your first question is, now look at the blackboard. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence. Find her is 84. Find her present age. Product of. Now I will split all these words into the different parts. Product. Product means you have to multiply. Means आपको यहाँ पर जो symbol use करना है, that is the multiplication symbol. ऑफ प्रगतिज एज, यहाँ पर एक प्रगति के बारे में बताया जा रहा है कि जो प्रगति की एज है, जो उसकी उम्र है, वो 2 years ago, मतलब 2 साल जो पहले उसकी एज थी, एंड 3 years hence, और आज से 3 साल के बाद जो उसकी एज रहेगी. देखो यहाँ पर प्रोडक्ट है प्रगति की एज का. अब हम प्रोडक्ट जब करते हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वी आर यूजिंग द 2 नंबर्स. अभी अकेला कोई नंबर मैं दे दूंगी, मैं बोलूंगी 5 डू द प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे मैम वी नीड 1 मोर नंबर, हमको एक नंबर और दीजिए ना, जब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे. सो फॉर एनी एक्शन वी नीड 2 नंबर्स. कोई भी एक्शन करने के लिए हमको 2 नंबर लगता है, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट करना है. किसका करना है? प्रगति की एज का. कौन सी 2 एज का? किस 2 एज का करना है आपको? तो फर्स्ट वन इज 2 years ago. 2 साल पहले जो उसकी एज थी, उसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 3 years hence, मतलब 3 साल के बाद. अब से, hence मतलब from now, अभी से 3 साल के बाद जो उसकी एज रहेगी,
उसका और अभी से 2 साल पहले जो उसकी एज थी, उन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है. देन यू विल गेट द आंसर. आंसर इज गिवन टू यू इज 84. वो 84 रहेगा अगर आप प्रोडक्ट करते हैं. सो फाइंड हर प्रेजेंट एज. तो आप उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करना है. सो फॉर दैट अब वी डोंट नो, अभी हमको पता नहीं है ना उसकी प्रेजेंट एज क्या है. अभी हमको तो मालूम भी नहीं है उसकी एज क्या है. अभी आप मुझसे पूछेंगे मैम व्हाट इज योर एज, इफ आई विल नॉट से नो आई डोंट नो, यू हैव टू कंसीडर. तो आप बोलेंगे ओके आई विल सपोज एक्स. तो आप कोई भी चीज क्या करेंगे, विथ वेरिएबल यू आर सपोजिंग. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड हर प्रेजेंट एज, जो आपको जो फाइंड करने के लिए दिया हम उसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे. सो सॉल्यूशन. सो इन द सॉल्यूशन फर्स्ट यू विल सपोज लेट Pragati's present age is X year. Don't forget to write year because you are considering year, age. Okay? तो प्रगति की अभी की एज जो है वो क्या है, X ईयर है. अब हम इसको बेस बनाते हैं और इसको बेस बनाकर हम सारी चीजें सपोज करते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 2 years ago, first condition 2 years ago. So Pragati's age 2 years ago. 2 साल पहले, 2 साल पहले आएगा मीन्स माइनस. अभी मेरी एज 30 साल है. 2 साल पहले कितनी रहेगी, तो आप क्या करेंगे, यू विल डू 30 minus 2. 30 minus 2 28. तो अभी की एज, प्रगति की अभी की एज जो है वो x ईयर है. तो 2 साल पहले मीन्स x minus 2. ओके, तो x minus 2. अभी की एज में से 2 साल मैंने माइनस कर दिए. सो x minus 2. नाउ फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन 3 years hence. So Pragati's age from 3 years now. अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल के बाद, मतलब अभी मेरी 30 साल है, 3 साल बाद. So 30 plus 3. Okay, you will do addition अभी से. So x plus 3. Yes. 2 साल पहले x minus 2, 3 साल के बाद x plus 3. अब इन दोनों का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, क्योंकि आपको बोला है ना प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज. दोनों एज का, जो 2 साल पहले की एज है और 3 साल के बाद की एज है, दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा 84. ओके, सो वी विल डू प्रोडक्ट. सो फ्रॉम कंडीशन, so as per condition x minus 2 product means multiplication, x plus 3 is equal to 84. हमने क्या किया, दोनों को हमने प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. तो ये अभी हमारा क्या हो गया, नाउ वी आर सेटल. अगर आप यहां तक पहुंच गए सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब हम क्या करेंगे, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट. ओके, अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को. पहले इस x को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. x एंड x स्क्वायर, फिर इस x को 3 के साथ करेंगे प्लस 3x. कंप्लीट हो गया हमारा. x मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 3, so plus 3x. नाउ विल डू विद द minus 2. minus 2x. Then 2 3s are 6. Now plus minus minus. 2 3s are 6. Now here multiplication finished. पहले मैंने x के साथ किया, so we got x square plus 3x. Then minus 2 के साथ किया, so minus 2x and minus 6 is equal to 84. ये हुआ. Now simplify this. Plus 3x minus 2x, that will be x plus minus minus. 3x में से 2x से गया, x बचेगा, x स्क्वायर प्लस x minus 6. Now I will shift this 84
which is in plus from left hand side to right hand side. So it will be minus 84 is equal to 0. Okay, now 84 minus 6 and minus 84 minus minus plus 84 में 6 मिलाएंगे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा. तो x square plus x minus 90 is equal to 0. This is your final equation which you have to solve. This is your equation. ये आपकी इक्वेशन है जो आपको क्या करना है सॉल्व करना है. ओके, अब हमारे पास ना वर्ड्स प्रॉब्लम में बेनिफिट होता है कि हम कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, whether it is factorization method or formula method. So you can opt any method. Okay, तो यहाँ पर मैं करूंगी factorization method से. So we have x square plus x minus 90 is equal to 0. This is our final equation. Now we have to bifurcate 90 in such a way that the multiple of 90 must be having the subtraction 1. आपको 90 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका जो 90 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका जो मल्टीपल आएगा, इसका जो फैक्टर आएगा, आप उसका जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए. वेरी नाइस इजी. 10 9s are 90. Okay, so I will write x square plus, now plus sign I will use because I need plus 1. So plus 10x minus 9x minus, अब 90 को मैंने आपको बताया था ना, आपको 90 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, आप इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखो 10 9s are 90. Okay, so you can write 10 9s are 90 is equal to 0, क्योंकि हमारे लिए इजी होता है फिर कॉमन निकालना. Now make the pair. Factorization method, make the pair. So from the first pair x will be common, we will get x plus 10. From the second pair 9 will be common, minus 9 because this is minus, so minus 9 and x plus 10 it will be common is equal to 0. Now binomial common, x plus 10 x minus 9 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 10 or x is equal to 9. Now we got two answers, x is equal to minus 10 but age will not be negative terms. कभी आपने सुना है क्या कि उसकी एज minus 10 है या minus 2 है? So it is not considerable. So what is her age? We will consider x is equal to 9 as an answer. Okay, so Pragati's present age is 9 years. Okay, 9 years. So very simple question. और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में. ओके, आप लोगों को बस ध्यान रखना है कुछ चीजों का कि किस तरीके से हमको इक्वेशन बनानी है. दैट इज ओनली वेरी मच इम्पोर्टेंट. आप किसी को इसमें से कुछ डाउट होगा तो आपको पूछना है, क्योंकि अभी हम लोगों को कैसे है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत बार बार वापस नहीं आ सकते हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आती है. So you can ask your doubt. Unmute your mic and ask your doubt fast. इसमें कुछ डाउट है आपको पूछना है. मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट किया है प्रगति की 2 साल की पहले की जो उम्र थी और 3 साल के बाद की जो एज है, उन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन किया है. पहले मैंने सपोज किया कि प्रगति की एज x ईयर है, फिर मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंगली 2 साल पहले को मैंने सपोज किया x माइनस 2 और 3 साल के बाद जो उसकी एज है उसको मैंने सपोज किया x प्लस 3. मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लीकेशन किया है, मैंने दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया है, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है. फिर मुझे एक सिंपल इक्वेशन मिली x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 मिली है, ठीक है, और उसको फिर मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है. वेरी सिंपल, वेरी इजी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रोबेबली आस्क्ड. एज टाइप के क्वेश्चन तो आपको कुछ एग्जाम में आते ही हैं. ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन. अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेक्यूटिव नंबर.
What is the question? The sum of the square of the sum of the square of the two consecutive even number is 244. Find the numbers. Find the numbers. The sum of the square of the, सम करना है, सम से आपको समझ में आ गया तो प्लस करना है, स्क्वायर करना है नंबर्स को। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट यू विल डू द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर उसको प्लस करेंगे। अब प्लस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, दैट विल बी 244। बट क्वेश्चन क्या है, टू कॉन्जिकेटिव इवन नंबर। नाउ हाउ टू सपोज सच नंबर्स, टू कॉन्जिकेटिव इवन नंबर। कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे मैं अगर आपसे सिंपल पूछूंगी कॉन्जिकेटिव इवन नंबर, यू विल से 2 4 6 8, बट लेकिन अभी आपको यहाँ पर सपोज करना है। तो हाउ टू सपोज दिस नंबर्स, दिस टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहले आप लोग समझ लो, वेरिएबल से आपको सपोज करना है। अब जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर यू कैन सपोज x। अगर आप एक को x सपोज कर रहे हो तो आपको दूसरे को x प्लस 1 सपोज करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस होते हैं ना नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये है आपके नेचुरल नंबर्स व्हिच वी कैन सपोज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। ओके, अभी आप लोगों को इवन नंबर सपोज करना है। सो हाउ टू सपोज इवन नंबर, तो पहला नंबर आपको लेना है 2x। इवन नंबर अगर आपको सपोज करना है तो योर फर्स्ट नंबर विल बी 2x एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी 2x प्लस 2, ऐसे सपोज करना है। अगर आपको ऑड दिया हुआ है, ऑड नंबर आपको अगर ऑड नंबर दिया है, so how to suppose odd number, so 2x plus 1, 2x plus 3, in this way you can suppose such type of numbers. If you want to take the screenshot, you can take. So natural numbers you can suppose first will be x, second will be x plus 1. Even number you can suppose 2x, 2x plus 2. Odd numbers you can suppose 2x plus 1 and 2x plus 3. In this way you can suppose. Now our question is that two consecutive even number, even number आपको सपोज करना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है हाउ टू सपोज। तो सॉल्यूशन, लेट two consecutive even numbers are x, 2x and 2x plus 2. These are consecutive even natural number 2x and 2x plus 2. Now we suppose that now the square, now see the condition, the sum of the square, square करना है पहले, ठीक है, देन उसका क्या करना है, आपको सम करना है। So from the condition, अब आपको कंडीशन के अकॉर्डिंगली पहले उसका स्क्वायर करना है, मींस 2x स्क्वायर, ओके, प्लस सम करना है। लेट मी राइट देयर, अदरवाइज space will not be sufficient. So 2x square plus 2x plus 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 244। देखो स्क्वायर कर रहा है, मैंने स्क्वायर कर दिया, सम करना है, मैंने बीच में प्लस साइन यूज किया है, इज 244 इज इक्वल टू 244। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले आप सपोज करो, उसका स्क्वायर किया है, सम किया है, इक्वलाइज किया है 244 से एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन।
अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व? 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। नाउ हाउ टू ओपन दिस? आप इसको कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से। a प्लस बी कैसे सॉल्व करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दिस वे वी आर डूइंग दैट। सो इन द सेम वे वी विल ओपन दिस, हम इसको भी ओपन करेंगे। ओके हम इसको भी ओपन करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इधर साइड में ओपन करूंगी, ठीक है। 2x मींस a सपोज कर लो 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। बीच में तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 2ab, सो 2 इंटू 2x इंटू 2, ओके तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस b स्क्वायर मींस 4, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ठीक है, ये देखो मैंने इसको सॉल्व किया है। 2ab 2 into 2x into 2 plus b square, that is 4. Now solve it. 4x square plus 4x square, 8x square. Okay, plus 2 2s are 4, 4 2s are 8. Okay, 2 ये तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। See that 2ab 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8x. Okay, plus 4 is equal to 244. अब क्या करना है आपको, 244 को उठाकर इधर लाओ, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, साइन विल बी चेंज। 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0. नाउ डू द सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x, अब 244 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 240 माइनस 240 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अगेन यू कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन फ्रॉम 8. आप इस इक्वेशन को पूरा 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड विथ बाय 8, डिवाइड बाय 8। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 8 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पर देखो 240 को मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, 8 1 है 8 3 है 24, 8 0 है 0, ओके तो ये आ जाएगा 30। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आपने इसको क्या किया है, 8 से डिवाइड कर दिया है, सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यू विल गेट दिस। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ चुकी है। बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स जस्ट रिवाइज दैट। हमने क्या किया, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मैंने सपोज किया है 2x एंड 2x प्लस 2, मैंने दोनों का स्क्वायर किया है, दोनों को ऐड किया है और उसको इक्वलाइज किया 244 के। देन आई ओपन द ब्रैकेट with the help of formula a plus b bracket square. I open this bracket, here it is. उसके बाद इस सब का मैंने स्क्वायर किया है, then I got 8x square plus 8x minus 240 is equal to 0. फिर मैंने डिवाइड किया है 8 से, because it is completely divided by 8, तो यहाँ पर 8 और 8 कैंसल हो गया, 240 को किया तो 30 आया है। So we got a very simple equation, x square प्लस एक्स माइनस 30। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है, वेरी इजी। आपको 30 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि आपको क्या मिलना चाहिए, +1। तो 6 5 30, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यू नो फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x, ओके प्लस 6x माइनस 5x, यू विल गेट प्लस x माइनस 6 5 30, 6 5 30, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, मेक द पेयर,
This is the first, this is second. So x and x is common. You will get x plus 6. 5 and 5 minus 5 is common. You will get x plus 6. Take out the binomial common. X plus 6, x minus 5 is equal to 0. You will get x is equal to minus 6 or x is equal to 5. Even natural number बोला है, so they can not be negative. Negative नहीं हो सकता है हमारा नंबर, natural number. So we will take 5. अब आपको आंसर 5 आया है, लेकिन आपने सपोज क्या किया था 2x and 2x plus 2. So you have to solve 2x first number. 2 into 5, 2 5 is 10. First number is 10. 2x plus 2. 2x plus 2. 2 into 5 plus 2. You will get 12. So your numbers are 10 and 12. Numbers are 10 and 12. 10 and 12. You know that these are the even number. 10 and 12. And they are consecutive also. 10 and 12. Okay. और अगर आप इसको स्क्वायर करते हो और स्क्वायर करने के बाद अगर आप इसको ऐड करते हो तो यू विल गेट 244. 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144. 144 में 100 मिलाएंगे 244 आएगा. वी सेटिस्फाइड द इक्वेशन. हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर आप दोनों का स्क्वायर करते हो अगेन देन यू आर एडिंग द नंबर, यू विल गेट 244. तो हमारे पास 10 आया और 12 आया. 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 100 में 144 मिलाएंगे 244 आ जाएगा. सो मींस हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. ओके. इसमें किसी को कुछ नहीं समझा है तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से नंबर्स को सपोज किया जाता है. जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि नेचुरल नंबर कैसे सपोज करना है, इवन नंबर कैसे सपोज करना है, ऑड नंबर कैसे सपोज करना है. दिस ऑल थिंग यू मस्ट रिमेम्बर. ओके. किसी को डाउट है इसमें? आस्क योर डाउट. Okay, yes, unmute your mic. Unmute your mic fast. हेलो. Yes. मिस इसमें मतलब ऐसा कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो कम नंबर आ सके? Sorry. हेलो. अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि अगर हम सपोज ऐसा करेंगे, यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ. लेकिन अगर आप कम वैल्यू लेकर आओगे तो आपको 244 मिलेगा क्या? मतलब आपको ये नहीं मिलेगा ना. अभी देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, मैंने आपको इसीलिए लास्ट में समझाया कि देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि आपको ऐसे दो नंबर सपोज करने हैं जिनका स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे तो 244 आना चाहिए. आप बोल रहे हो कि ऐसा कौन सा नंबर सपोज करेंगे स्मॉलर नंबर है. अगर स्मॉलर नंबर आएगा, अगर आप इसके फॉर एग्जांपल 2 और 4 आ गया आपका आंसर, तो 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा और 4 का स्क्वायर करूंगी तो 16 आएगा. लेकिन 4 में 16 मिलाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है फिर 20 आ रहा है ना, इंस्टेड ऑफ 244. समझ में आया आपको बेटा? यस. हाँ. तो बात ये नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का 244 की जगह कुछ और दिया रहेगा, तब भी आपको 2x और 2x plus 2 ये सपोज करना है. समझ में आया आपको? आपको यही सपोज करना है. देखो एक बात याद रखो, आप लोग ना अपना एक जैसे हम क्या करते हैं व्हेन वी आर ड्राइंग द ग्राफ, है ना, तो हम हमारी x की वैल्यू को क्या करते हैं ना सपोज करके रखते हैं 1 0 -1. ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना. कोई करता है 2 0 1, कोई ऐसा करता है. तो ऐसे ही आपको फिक्स करना है कि भाई मुझसे कोई वर्ड्स प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन आया कि नेचुरल नंबर आया तो मैं सपोज करूंगा x plus 1. इवन आया तो 2x plus 2. ऑड आया 2x plus 1 2x plus 3. अगर आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे और फिक्स कर लेंगे तो यू विल नेवर बी गेट जंबल. तो आप कभी जंबल नहीं होंगे इन चीजों के लिए. ठीक है? यस. एनीवन एल्स? आस्क योर डाउट. साक्षी राव, अनम्यूट योर माइक बेटा.
साक्षी, टीचर अगर इवन नंबर की जगह ऑड नंबर आया तो कौन सा नंबर लेंगे? 2x plus 1, 2x plus 3. ओके, और कोई? हाँ साक्षी, आपको डाउट क्लियर हो गया ना बेटा? अगर ऑड नंबर आया तो आपको क्या लेना है? 2x plus 1, 2x plus 3 लेना है आपको, ठीक है? ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज इन द एक्टिविटी फॉर्म. एक्टिविटी फॉर्म में है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा. So let me share the screen. Yes, Anjali. Anjali, do you have any doubt? Ask. Anjali, unmute your mic, beta. So this is the question which is given to you on your screen. In the orange garden of Mr. Madhusan, there are 150 oranges tree. आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है. अंजलि, अभी आप अपने हैंड्स को डाउन कर दो, बाद में पूछ लूंगी आपसे. So in the orange garden, yes. टीचर, वो आपने जो लिखा था ना कि हमें अज्यूम करना रहता है इवन नंबर रहेगा तो ये, Yes. ऑड नंबर रहेगा तो वो, मिस एक बार आप फिर से बोर्ड पे लिख दीजिएगा ना. हाँ बेटा, थोड़ा सा ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैं जो शेयर कर रही हूँ ना, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ मिस, दिख रही है. हाँ, तो ये हो जाने दो, फिर मैं आपको पहले वही बता दूंगी. ओके, मैं बता दूंगी. So in the orange garden of Mr. Madhusan, there are 150 oranges tree. Mr. Madhusan है, उनके गार्डन में टोटल जो ट्रीज है ना वो 150 है. The number of trees in each row is more than that in each column. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो. अब आपको मालूम है जब गार्डन होता है तो रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो जो रो के अंदर जितने भी है ना ट्रीज वो कॉलम से 5 ज्यादा है. मतलब अगर आपके कॉलम में x नंबर ऑफ ट्रीज है तो आपका जो रो है उसमें x plus 5 रहेंगे. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम. मतलब कॉलम से ज्यादा रो में है. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट. अब आपको यहाँ पर देखो चार्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x. यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो कॉलम है उसमें x नंबर ऑफ ट्रीज है. तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो रो में कितने रहेंगे? फिर मैंने अभी आपको बताया कि रो में जो रहेंगे वो x plus 5 रहेंगे, क्योंकि रो में जो है नंबर ऑफ ट्रीज वो 5 ज्यादा है कॉलम से. तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज x plus 5. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है, you know that. Then number of, then again frame quadratic equation, then find x number of trees in column and number of trees in a row. तो मैं यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है? अब मैं इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करूंगी, ठीक है? मैं पहले इसको कंप्लीटली सॉल्व करूंगी, देन यू कैन इजीली आप इसको कर सकते हो. अब जैसे अंजलि ने पहले कहा था कि मैम आप पहले बता दो कि नेचुरल नंबर रहेगा तो क्या करना है. तो नेचुरल नंबर रहेगा तो नेचुरल consecutive number you have to suppose x and x plus 1. Okay, natural consecutive number x plus 1, natural even number consecutive even number 2x plus 2, odd number 2x plus 1, 2x plus 3. Take a screenshot or take us, capture it. Even, odd, only natural numbers. Okay? अब देखना है हमको मिस्टर मधुसन का, लेकिन पहले मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ.
कंसेप्ट बताती हूँ। उनके जो ट्रीज है ना वो रो एंड कॉलम में इन दिस वे, दिस इज आवर कॉलम, दिस इज रो, ठीक है। अब उनके जो कॉलम में ट्रीज है ना वो x है, कॉलम x है, और जो रो में है ना वो 5 मोर है, मींस x + 5। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 150 है। अब टोटल मतलब आप बोलेंगे मैम ऐड करना है हमको, याद रखना है आपको, जब भी रो और कॉलम की टोटल करनी हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर। आप x को और x + 5 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा। तो x इंटू x + 5 करेंगे तब हमको मिलेगा 150। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा कॉलम है उसमें नंबर ऑफ ट्रीज 2 है और यहाँ कॉलम रो में जो है वो 3 है। मैंने पूछा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर, तो यू मस्ट मल्टीप्लाई 2 3 6। तो आप बोलेंगे मैम देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ ट्रीज। तो आपको जब टोटल करना है रो एंड कॉलम का तो यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, सो आई विल डायरेक्टली सॉल्व नंबर 3। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ let number of trees in column x which is given to you in your activity, then number of trees in row which is 5 more than that of column, जो column से 5 ज्यादा है, so x + 5। total number of trees 150, ये भी आपको वहां पर दिया हुआ है। ओके, सो these 3 thing has given to you in the column। कॉलम में कितना है, रो में कितना है, नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, तो आपको जस्ट सिंपली उसको क्या करना है, फिल करना है। अब आपको जो फोर्थ बॉक्स है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so how to form the quadratic equation? So I will form as per the condition x into x + 5 is equal to 150। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी और इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पर मैं ओपन करूंगी ब्रैकेट को, x² + 5x is equal to 150 and 150 will shift from right hand side to left hand side, x² + 5x minus 150 is equal to 0। so this is your quadratic equation। ये आपकी quadratic equation है जो आपका फोर्थ दिया हुआ ना एक्टिविटी में, तो आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरी आपको एक्टिविटी बना लेनी है और उसमें आपको सिंपली पुट करते जाना है। तो ये आपका फोर्थ है। देखो फर्स्ट वाले में x था, सेकंड में x + 5, थर्ड में 150 एंड फोर्थ में ये आएगा x² + 5x minus 150। अभी आपसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको रो के मालूम करना है, कॉलम में कितने ये मालूम करना है। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो 150 आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका जो सब्ट्रैक्शन दैट शुड बी 5। तो 15 10s 150 होता है ना, 15 10s 150, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना, हमको पता है ये चीजें। 15 10s 150, 15 minus 10 5। so I will put the value x² plus 15x minus 10x। देखो 15x में से 10x जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा, माइनस 15 10s 150। ओके, अब मैं क्या करूंगी, पेयर बना लूंगी एंड आई विल टेक आउट द कॉमन। अब कॉमन निकालूंगी,
Okay, so from the first pair x plus 15, okay, minus 10 x plus 15 is equal to 0. Take out the binomial common. X plus 15 x minus 10 is equal to 0. So you will get answer x is equal to minus 15 or x is equal to 10. You will get plus 15 जाएगा minus 15 हो जाएगा, minus 10 shift होगा 10 हो जाएगा. But number of trees are cannot be in the negative. So we'll consider x is equal to 10. तो x की वैल्यू आ गई 10. ये आपको फोर्थ में पूछा था, फिफ्थ में पूछा था, x is equal to 10 आ गया. अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम. तो हमने क्या सपोज किया था x, तो 10 आएगा. एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, सो x plus 5, 10 plus 5, 15. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कि नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम में 10 है और नंबर ऑफ ट्रीज रो में 15 है. अब आप देखो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, वेरीफाई करते हैं. 10 15 सा 150 होता है, नंबर ऑफ ट्रीज हमारे 150 है. इट मींस आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. ओके, इसमें क्या नहीं समझा? व्हाट इज योर डाउट? आस्क. It was in the activity format. I showed you that activity. Now tell me what is your doubt? हमने क्या किया? नंबर ऑफ ट्रीज हमने कॉलम के पहले सपोज के जो दिए हुए थे, आपको x दिया हुआ था और आपसे ये बोला गया था कि जो रो में है द नंबर ऑफ ट्रीज 5 मोर देन दैट कॉलम. कॉलम से 5 ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम प्लस यूज करते हैं, तो x प्लस 5. और दोनों का हमने क्या किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पता है क्या थी इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी कि आपको x इंटू एक्स प्लस 5 करना था, आपको दोनों का प्रोडक्ट करना था. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही थी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाना था ना, ये वाली कंडीशन, ये वाली x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप इस स्टेप को नहीं कर पाए देन यू विल बी अनएबल टू सॉल्व द होल क्वेश्चन. अगर आप कोई बच्चा अगर इसको प्लस कर देता तो क्या हो जाता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती ही नहीं थी. x में x मिल जाता, 2x हो जाता. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही नहीं थी आपकी. तो याद रखना है जब भी रो और कॉलम के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम करना है, देन यू विल गेट द टोटल नंबर. ओके, कुछ डाउट अगर है आप लोगों को तो पूछ लीजिए इसके अंदर. फिर मैंने फैक्टराइजेशन किया है, आपको याद रखना है फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल दिया हुआ रहेगा, आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं आएंगे. 150 दिया था, 150 का फैक्टराइजेशन मैंने किया 15 इंटू 10 में. 15 इंटू 10 मैंने किया, आई गॉट 150. दोनों को माइनस किया, आई गॉट 5. बट याद रखना है आपको कि साइन का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है आपको. तो यहाँ पर 5x था, इसलिए मैंने बड़े नंबर के साथ 15 के साथ मैंने प्लस लगाया है और छोटे नंबर के साथ मैंने माइनस लगाया. यहाँ माइनस 150 था तो मैंने माइनस 15 इंटू 10 किया. अब यहाँ पर जब हमने कॉमन निकाला है तो याद रखना है कि आपको कि x निकला है तो अंदर प्लस बचेगा, यहाँ माइनस 10 निकला है तो अंदर प्लस बचेगा. यस अनम पटेल, यस बेटा, अनम्यूट योर माइक. Anam, ask your doubt. No, ma'am, no doubt. You raised your hand, that's why I asked you. Okay. तो आप सबको समझ में आ गया. I hope you understand all the three questions. First was related with the age. Second was related with the numbers, which are very important. These two type of question I am telling you very important. Age type of question and the consecutive numbers type of questions. These are very important questions. Okay, so revise it, and if you are getting such type of questions ahead of you, in front of you, then ask me. Okay, now the remaining question we will do tomorrow. Okay.
Ma'am, shall I, madam? Yes, thank you, Subha ma'am. Yeah, thank you.